Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. I'm Devanshi Shrivastava and this is the part second of the video 6-month strategy to conquer NEET 2022. So keep watching. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एंड कम्युनिटी पोस्ट में बोला था, I have come up with a weekly schedule for you guys till the end, till the very day of the examination. And जैसा कि हम सोच रहे हैं, NEET will be conducted maybe in the first week of July at the earliest. सबसे जल्दी होगा तो इसी टाइम पे होगा बिकॉज हमारी काउंसलिंग इतनी ज़्यादा डिलेड है, हमारे कॉलेजेस अराउंड मार्च अप्रैल में मे बी स्टार्ट हो, सो यू कांट एक्सपेक्ट इट अर्लियर देन दैट. So एक प्री रिक्विसाइट में दे दूँ अबाउट द शेड्यूल दैट आई हैव मेड द शेड्यूल फॉर समबडी हु इज़ इन क्लास 12th और somebody who is a dropper. ठीक है, and they are appearing for NEET examination. So I have kept this in mind that this will not be the first time when you'll be reading that chapter. पता है इस चैप्टर में ये होता है, उस चैप्टर में वो होता है, एक ब्रीफ कुछ कुछ तो पता ही है ना. यू आर नॉट टोटली न्यू कि अब मुझे चैप्टर पहली बार पढ़ना है. ऑनेस्टली 2 साल का सिलेबस हमें अभी 4-5 महीने में, हार्डली 4-5 महीने में ख़त्म करना है, राइट? नाउ फॉर द स्टूडेंट्स हु विल प्रॉबेबली बी रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, रीडिंग चैप्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने 11th बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, जिन्होंने 12th भी अभी तक बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, द पीपल हु वर नॉट स्टडिंग बट नाउ दे वांट टू, फॉर देम आई से कि हर सब्जेक्ट में around 30 to 40 chapters हैं for NEET, right? So you can leave those chapters who have a very low weightage and you can do only those which have more weightage in your examination. So that can be a damage control for you. जिस भी week में जो भी chapter दिया हुआ है, what you'll have to do is, first of all, watch the lecture on YouTube, or if you're enrolled in any online coaching, offline coaching, whatever, watch a lecture too. After that, just make short notes while the lecture is going on, or after the lecture is done, you can do that very easily, and then solve the questions. Use a question book, not just PYQs but different types of questions. Very 6 महीने का time है तुम्हारे पास, so this is where you are practicing other questions also. Okay, in biology you don't really have to watch lecture for each and every chapter questions, but out of the NCERT questions करने की जरूरत नहीं है. Out of the NCERT what you'll do is only the PYQs you will do, which will be out of the NCERT. Nothing else has to be done out of the NCERT. In chemistry also, in inorganic chemistry you don't have to watch the lectures, you just have to read the NCERT. Inorganic chemistry में तो तुम्हें extra questions करने की भी जरूरत नहीं है, just do the PYQs and you have to practice a lot of questions. अभी जो 4-5 महीने का टाइम है to complete your syllabus, this is the time where you practice the maximum amount of questions. Okay, so now let's get started with your schedule. तो मेरा जो schedule हमने बनाया हुआ है, that we are going to start from 1st January. Okay, now why 120 days? Because हमें जो अपना syllabus completion करना है ना, I'm not talking about revision, okay, I'm talking about syllabus completion. हद से हद we have to complete it by अप्रैल या थोड़ा सा टाइम तुम और ले सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो यू हैव 17 वीक्स, राइट? फिजिक्स में यू हैव 29 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में यू हैव 31 एंड बायोलॉजी में 38. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट फिजिक्स. इन अ वीक तुम एक चैप्टर भी फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे. इट्स अ बिग टास्क, ओके. लेकिन अगर तुम्हें NEET 2022 क्रैक करना है यार, सो यू हैव टू डू इट बिकॉज देर इज़ नो अदर वे आउट एंड सिलेबस कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट कांट स्टडी 10 out of the 20 chapters and clear NEET. No. Okay, so this is the way in which I have divided a page into 4 sections. week 1, 2, 3, 4 and आगे ऐसे कंटिन्यू होगा. Now first week में in physics there'll be vectors, there'll be 1D and there'll be 2D. 1D and 2D एक पूरा यूनिट जो है काइनेमैटिक्स वी कॉल इट, एंड बट इनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है. सो लाइक आई वाज सेइंग, जिन बच्चों का पूरी तरह अच्छे से अभी तक मतलब एक आइडिया भी नहीं है किसी चैप्टर का, यू कैन जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज. तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने तो मत पढ़ो, जस्ट फॉर्मूलाज देख लो थोड़े बहुत कि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो तुम उसे टैकल कर पाओ, and that will be enough. In chemistry you have to do the mole concept. Now mole concept की मैं अगर बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. all the physical chemistry that you will deal, उसका जो बेसिक है ना वो यही है. so this is a must do.
Talking about biology, I have placed living world, biological classification and plant kingdom all together in first week. Animal kingdom मैंने अलग इसलिए किया बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्डसम हो जाएगा, थोड़े बोरिंग टॉपिक्स हैं, लिविंग वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो तुम्हें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो इट्स ओके. नाउ सेकंड वीक में अगर हम आए तो इट इज़ एनएलएम एंड फ्रिक्शन फॉर फिजिक्स. एनएलएम एंड फ्रिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज से कम 4 क्वेश्चन तुम्हें नीट के पेपर में दिखेंगे ही. सो इफ़ यू आर गेटिंग एन ईजी चैप्टर एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, why will you leave that chapter ever? बोलूँगी in fact for mole concept and NLM and friction, I think you should watch lectures, and if you are not enrolled in any coaching, go to YouTube, see some good teachers who. Now about chemistry, you have atomic structure and periodic table. Atomic structure is a very interesting chapter but उसका weightage बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर तुम चाहो तो इसे थोड़ा लाइटली ले सकते हो, बट मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि तुम ये लाइटली लो. ये लो वेटेज ज़रूर है बट ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक टेबल तुम्हें करना है. चैप्टर ईजी है, यू कैन डू इट वेरी नाइसली एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो. बायोलॉजी में सेकेंड वीक में यू हैव टू डू प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटमी ऑल टुगेदर. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रटने वाले चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं. यू हैव टू डू इट ऑल टुगेदर बिकॉज तुम्हें टाइम की कमी है. ठीक है. नाउ वीक नंबर 3 में इन फिजिक्स यू हैव वर्क पावर एनर्जी एंड सेकंड में है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. नाउ ये जो चैप्टर है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स या ऐसे कुछ करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने अपने पर्सनल प्रिपरेशन में रोटेशनल डायनेमिक्स एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया था, क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यू कैन डू इट वेरी इजीली. सेंटर ऑफ मास और ये सब जो आते हैं, ये आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंडर. तो ये चीज़ जो है तुम वीक 3 में विद वर्क पावर एंड एनर्जी कर सकते हो. मेरे नोट्स देख लेना, इस मैकेनिक्स में मेरे नोट्स बहुत प्यारे हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट. ओके. केमिस्ट्री में यू हैव टू डू केमिकल बॉन्डिंग इन गैशियस स्टेट. ना केमिकल बॉन्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस गैशियस स्टेट का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बट तुम चाहो तो करो या फिर यू कैन लीव दिस चैप्टर. फिर बायोलॉजी में व्हाट यू हैव टू डू, एनिमल किंगडम एंड एनिमल टिश्यू तुम्हें साथ में करने हैं. क्या है ना कि जब तुम चीज़ें रिलेट कर पाओगे, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग वन चैप्टर, इट इज़ अबाउट हाउ यू स्टडी वन चैप्टर, हाउ यू स्टडी द सेकेंड चैप्टर एंड यू रिलेट बोथ दीज चैप्टर्स. एनिमल टिश्यूज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा है. अर्थवॉर्म तुम पढ़ोगे परेशान हो जाओगे. ठीक है. कॉकरोच एंड फ्रॉग इज़ ईजी. फ्रॉग इज़ तो वेरी रिलेटेड टू अस, सो यू कैन बहुत आराम से कर सकते हो उसे. सो तुम चाहो तो अर्थवॉर्म छोड़ भी सकते हो, बट बेसिक चीज़ें उसकी पढ़ लेना, एक आध बार रीडिंग भी मार लेना, लेकिन स्पेसिफिकली करना बहुत ज़रूरी नहीं है. वीक नंबर 4 में यू हैव टू डू रोटेशनल डायनेमिक्स. लाइक आई सेड, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी. इसके लिए भी आई रिकमेंड वॉच अ लेक्चर. केमिस्ट्री में यू हैव टू डू थर्मोडाइनमिक्स एंड गैशियस स्टेट ऑल टुगेदर. गैशियस स्टेट मैंने यहाँ दिया था, बट यहाँ मैंने सेकंड टाइम इसलिए दिया है क्योंकि देखो केमिकल बॉन्डिंग अपने आप एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो उसके साथ दूसरा चैप्टर एक ही वीक में कंप्लीट करना अगर तुम्हें चैलेंजिंग लगे तो यहाँ पे तुम इसका हाफ कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम इसका अदर हाफ कर सकते हो. थर्मोडायनेमिक्स भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर एंड चैलेंजिंग लगता है अगर तुम अच्छे से ना करो. इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम एक लेक्चर ज़रूर देखो. बायोलॉजी में यू हैव टू डू सेल थियोरी, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स. दिस चैप्टर कैन बी डन बहुत अच्छे से विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स. बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैं नोट्स दूंगी. बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी से समझ नहीं आती है, मुझे नहीं आई थी, तो मेरे जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी. वीक नंबर 6 में यू हैव ग्रेविटेशन एंड इलास्टिसिटी. ग्राफ्स के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है. इलास्टिसिटी के नोट्स मेरे पास हैं, वो देख लेना बहुत इजीली. 1 पेज के नोट्स हैं एंड सीरियसली तुम्हें उस चैप्टर में उस 1 पेज के नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. केमिस्ट्री में यू हैव टू डू केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. नाउ आई विल सजेस्ट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर तुम कम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम पहली बात तो ये इलास्टिसिटी छोड़ सकते हो. केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्लाई होते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो यू कैन जस्ट गिव दिस अ रीडिंग. बहुत अच्छे से मत करो, बट आयनिक इक्विलिब्रियम प्लीज़ अच्छे से कर लेना. इसके लिए यू हैव टू वॉच अ लेक्चर. ओके, this is an important one, you should watch a lecture. Biology में you have to do transport in plants, mineral nutrition and plant photosynthesis. This is plant physiology. बहुत टफ लगती है लोगों को, मुझे भी बहुत लगती थी. Do it from the NCERT. डेटा याद रखो,
प्लांट फोटोसिंथेसिस में स्पेशली कितने एटीपी बन रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो। प्लांट फोटोसिंथेसिस और प्लांट रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा साइकिल्स हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड दैट इज़ वेरी टफ ऑल्सो। दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट दीज 2 चैप्टर्स सेपरेटली इन 2 डिफरेंट वीक्स। वीक नंबर 7 में इन फिजिक्स यू हैव फ्लूइड डायनामिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में यू हैव टू डू एस ब्लॉक विच इज़ ग्रुप 1 एंड 2। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा कम वेट करके स्किप कर सकते हो। पी ब्लॉक का ग्रुप 13 करना है ना। बायोलॉजी में यू हैव टू डू प्लांट रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नंबर 8 में तुम्हें करना है फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स एंड केटीजी। इन दिस वे योर थर्मल फिजिक्स विल बी डन विथ। एंड केमिस्ट्री में यू हैव टू डू ग्रुप 14 ऑफ पी ब्लॉक एंड जीओसी करनी है। दिस इज़ वेयर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगिंस ना। जीओसी के भी आई वुड रिकमेंड कि तुम ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, ठीक है। बायोलॉजी में यू हैव टू डू डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एंड जीओसी में रेफर दी एनसीईआरटी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं पीछे, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, इसको तुम्हें एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से करना है, लेक्चर देखना है एंड एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छे से ये चैप्टर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीक नंबर 9 में यू हैव टू डू एसएचएम एंड वेव्स। नाउ एसएचएम इज़ अ लो वेटेज टॉपिक, you can leave it but I would not recommend to. Chemistry में you have to do hydrocarbons and solutions. This biology में you have to do circulatory system and excretory system. Excretory system is a comparatively tough chapter but weightage बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। फिर वीक नंबर 10 में यहाँ पे जो मैंने एसएचएम एंड वेव्स दिया था, वेव्स इज़ अ बिग चैप्टर, ओके। उसमें पहला हाफ वहाँ करो एंड अदर हाफ तुम यहाँ पे कर लेना। फिर वेव इज़ वेरी रिलेटेड टू वेव ऑप्टिक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ्रैक्शन है, ये वो सब कुछ ना तुम्हारे दोनों चैप्टर्स में दिया हुआ है। ये तुम्हारा 11th का चैप्टर है एंड ये तुम्हारा 12th का चैप्टर है, बट दोनों रिलेटेड है, तो दोनों साथ में करो, वो बेटर होगा। केमिस्ट्री विल बी सोल्यूशंस एंड सॉलिड स्टेट। यहाँ पे मैंने हाइड्रोकार्बन एंड सोल्यूशंस दिया था, बट ये दोनों बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए आधा सोल्यूशंस आई वुड से यहाँ करो एंड आधा जो बाकी बचा हुआ है वो पार्ट तुम यहाँ पे कंप्लीट कर लो, ठीक है। नाउ सॉलिड स्टेट्स इज अगेन एक लो वेटेज वाला चैप्टर, बट इसका समझना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो। एंड ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी स्पेसिफिकली तुम लोग को, बाद में मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे इस चैप्टर से बहुत दिक्कत है। बायोलॉजी में you have to do skeletal system and nervous system together. And week number 11 में physics में again you come to ray optics। जो optics वाला portion है वो ख़त्म हो जाएगा। chemistry में you will do electrochemistry which is physical chemistry and then hydrogen which is inorganic chemistry. This is not a very important chapter, लेकिन question आ सकते हैं। अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें पूरे full marks स्कोर करने हैं या 650 प्लस स्कोर करना है, ऐसा तुम्हारा गोल है, तो आई वुड से येस, जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनको भी तुम्हें करना ही है। बायोलॉजी में यू हैव human eye, human ear and endocrine system. Human eye and human ear is given in nervous system, right? But since you're doing nervous system with skeletal system which is a long chapter, I would say nervous system सिर्फ वहाँ तक तुम करना। फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्स है ना, नी जर्क रिफ्लेक्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये तुम वीक नंबर 11 में विद एंडोक्राइन सिस्टम कर लेना। नाउ तुम्हें लग रहा होगा वीक 11 के बाद वीक 13 है, वीक 12 कहाँ गई, उसके बारे में बाद में बताती हूँ, ठीक है। वीक 13 में यू हैव टू डू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कैपेसिटेंस विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। दोनों से ही कम आते हैं क्वेश्चंस। सिर्फ फॉर्मूलाज देख लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत घुस के मत पढ़ना, बट ग्राफ्स कर लेना। केमिस्ट्री में यू हैव केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, डायग्राम्स और उनके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक नंबर 14 में यू विल हैव टू डू कैपेसिटेंस। यहाँ पे तुम चाहो 3/4 कैपेसिटेंस साइड सजेस्ट तुम यहाँ कर लो और यहाँ लास्ट का 1/4 पार्ट बस छोड़ना, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। दिस यू हैव टू डू वेरी नाइसली। ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है इसके। केमिस्ट्री में ग्रुप 13 14 हमने 11 में कर लिए थे, अब हम 12th के वाले पार्ट में हैं, तो 15th और 16th ग्रुप तुम करोगे विद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दिस इज अगेन अ वेरी 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 इजी चैप्टर। एंड अगर तुम्हें एक बहुत इजी चैप्टर पढ़ के एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, तुम 4 मार्क्स तुम्हें गेन हो जा रहे हैं, तो फिर क्या बुराई है। आई थिंक यू शुड डू दिस चैप्टर। बायोलॉजी में
फिर तुम करोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वेटेज कम है, लेकिन अगेन चैप्टर बहुत ईजी है एंड एक क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले है, तो ये तुम्हें करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी टफ चैप्टर। वीक नंबर 15 फिजिक्स में यू हैव टू डू मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है अकेले बिना किसी पेयर के। केमिस्ट्री में यू हैव टू डू पी ब्लॉक का 17th एंड 18th ग्रुप एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। बायोलॉजी में यू विल डू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड माइक्रोब्स। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, एंड इसका एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो आई विल से यू शुड डू दिस। दिस इज अ टफ चैप्टर, यही सही में मैं बोलूँगी, दिस इज़ एक्चुअली अ टफ बायोलॉजी का चैप्टर। सो तुम्हें ये बहुत अच्छे से करना है। आई रिकमेंड कि तुम इसके लेक्चर्स भी देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लेक्चर्स देख लेना। वीक नंबर 16 में यू विल डू मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दिस इज़ वेरी थियोरेटिकल टाइप का चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, चाहो तो कम पढ़ो, स्किप कर सकते हो। केमिस्ट्री में यू हैव हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। SN1 मैकेनिज्म, SN2 वगैरह है ना, ये सब इसी चैप्टर में है। तो ये चैप्टर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये चैप्टर तो तुम्हें करना ही है, ठीक है। बायोलॉजी में यू हैव इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। इस वीक में यू हैव टू डू 3 चैप्टर्स। क्यों करने हैं 3? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और ये जो तीनों ही चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ईजी हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट, ये टफ चैप्टर है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो तुम चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो या पुराना स्क्रिप्ट करके थोड़ा थोड़े पार्ट्स पढ़ सकते हो। टेबल्स ना याद करो, वो ज़्यादा टफ होते हैं। वीक 17 में यू हैव टू डू ऑल्टरनेटिंग करेंट्स एंड EM वेव्स। नाउ ये जो मूविंग चैप्टर्स एंड मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, इन चारों का ना एक कंक्लूजन है ये EM वेव्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एज अ होल ये यूनिट तुम्हें कंक्लूड करने में बहुत हेल्प करता है, तो आई रिकमेंड तुम कर लो ये। केमिस्ट्री में यू हैव टू डू aldehydes, ketones and carboxylic acids. This is an important chapter. And biomolecules of chemistry. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इज़ वेरी इजी, स्पेशली बिकॉज यू आर नीट स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी में यू विल डू बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट का, एंड सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्लस थोड़ा टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं इसमें। आई रिकमेंड टू वॉच अ लेक्चर ऑन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, तो बहुत ईजी है, इसे तुम्हें करना ही है। वीक 18 में यू विल डू डुअल नेचर एंड एटम्स। ये देखो, ये जो फिजिक्स का यूनिट है ना, जो मॉडर्न फिजिक्स वाला, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट क्योंकि बहुत इजी है, बट क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें ये साथ में करना है वीक नंबर 18 में। केमिस्ट्री में यू विल डू अमाइंस एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आएगा हमेशा, इसलिए मेटलर्जी को तुम्हें बहुत डेप्थ में करना है या फिर करना ही नहीं है, दोनों में से कोई एक तरीके से करना है। बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ये 2 चैप्टर्स मैंने इसलिए साथ में रखे हैं। ये चैप्टर 1 है एंड ये चैप्टर 3 है, बट इनको साथ में रखा है क्योंकि सेकंड चैप्टर लंबा हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड साथ में ना करो तो अच्छा होगा। फिर वीक 19, दिस इज़ आवर लास्ट वीक। फिजिक्स में यू विल डू न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, एंड केमिस्ट्री में यू विल डू पॉलीमर्स, विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, बट थोड़ा याद करना है। इट्स स्टिकी नोट्स बनाओ, छोटे नोट्स बनाओ और एक सामने चिपका दो, एंड उससे एक पेज में ही तुम्हारा पूरा चैप्टर आ जाएगा, एंड उसको रिवाइज करते रहो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करो एंड रिडॉक्स रिएक्शंस करो। तीनों बायोलॉजी में यू हैव टू डू, ये है चैप्टर नंबर 2 एंड ये है चैप्टर नंबर 4। तो देखो ये सब, तो तुम्हें ये मिड मे तक ख़त्म कर लेना है, उससे ज़्यादा प्लीज़ मत जाना, डूब जाएगा, प्लीज़ 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 मत जाना। रिवीजन नंबर 1 तुम्हारा मिड जून तक हो जाएगा, 1 महीने में। दैट मीन्स रिवीजन नंबर 2 यू विल डू इट बाय जून एंड, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मे बी तुम्हारा पेपर हो एट द अर्लीस्ट। एंड अगर बाद में होता है तो अच्छी बात है, तुम 3, 4, 5 कितने भी रिविजन कर सकते हो, दैट इज़ वे बेटर। एंड ये जो सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन नंबर 1 एंड रिवीजन नंबर 2 करते करते तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने होंगे, ओके। बाद में वीडियो बना दूंगी कैसे टेस्ट एनालिसिस वगैरह करना है। अभी के लिए ये जान लो, रिवीजन 1 और 2 करते करते ही तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं। वीक नंबर 5 जो मैंने एक छोड़ा है, उसमें तुम वीक 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 एंड वीक नंबर 4 रिवाइज करोगे।
जो चीज़ें तुमने वीक नंबर 1 में की हैं, जब तुम वीक नंबर 2 करोगे ना, तो यू आर गोइंग टू डू अ रिविजन ऑफ वीक नंबर 1 हियर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम आगे बढ़ते जाओ, पीछे के रिवाइज करते जाओ. वीक नंबर 3 में यू विल हैव टू रिवाइज वीक नंबर 1 and 2. Revision is the key. You have to keep revising. Every week you have to revise what you have done in the previous weeks. वीक नंबर 1 से लेके वीक नंबर 11 तक तुमने जितना किया ना, तुम्हें सब रिवाइज करना है, ठीक है, वीक नंबर 12 में. So that's it. That was all that I have prepared in my tablet.